I request all the participants to put their right hand on their heart. बैठ के सर, बैठ के. Thank you. Now I request our young and dynamic chairman, CA Fenil Shah sir, to give his welcome address. Thank you. Thank you, Bishan Bhai. The very learned speaker, and we can say the authority in income tax, none other but CA Dr. Girija Ahuja sir, joining virtually with us due to pandemic situation from New Delhi. Our own Central Council member, CA Aniket Talati ji, Vice Chairman, CA Harit Dhariwal, CA Bishan Shah, Secretary, CA Sunil Sanghvi, Chairman of Direct Tax Committee of Ahmedabad branch, seniors in profession, and dear members, it gives me an immense pleasure to welcome you all on this virtual platform today due to pandemic situation again to discuss on the budget 2021-2022. Friends, before we move with this, I would just like to tell that though there was pandemic situation, but this time we did all those things which we normally did for budget, starting from live budget discussion, and we are having both the speakers, regular speakers who always deliberate with us and guide us, that is respected Ahuja sir, and also tomorrow Saurabh Soparkar sir. But apart from this, friends, this time for the first time, we had two initiatives. One was we had a specific session for students to discuss on budget yesterday, and also yesterday evening, renowned members of Ahmedabad did a sectoral discussion on various perspectives on the budget, which we are going to also discuss today. And apart from this, friends, in this big gathering, I would just take a minute to brief you on the future program so you don't miss to participate in that. Friends, on this Friday and Saturday, we are having a benchmark program since last 4 years. That is nothing else but IT conference. That is Conference on Forensic and Investigation at Hayat. So very few seats are there. So you can participate this Friday and Saturday. Also this Friday, Saturday, Sunday, we are having a GST RRC. Both this IT conference and GST RRC are benchmark events for Ahmedabad branch, in which all the members from Pan India have a focus and are willing to participate. Apart from this, on 19th, 20th and 21st, we are having a RRC for young members for networking at Jaisalmer. Apart from this, you will today receive the mail. We are having various programs or opportunities in stock market and opportunities in litigation program. With these brief words, I welcome all the members to join this programs of branch and to take the utmost benefit of the same. Before I hand over further this program, we all might be discussing on whether the budget was positive or negative. I'll not comment on what happened with GST audit or what happened with tax audit, nothing on that. But what perspective I developed when I saw the budget was that this budget is good from a perspective. First, our economy is in a pandemic situation. So if we still in this economy, if we focus that what I got or what benefit I will receive, then we as a chartered accountant can just see to it that how as a responsible individual we can contribute. So this is a time to contribute to nation building. Then in that situation, if you see the holistic budget they had, then I can say that this is a positive budget. Friends, we are right now in a V-shaped recovery. And in that situation, we can say that budget is positive in the sense that government didn't levy any kind of burden on us in form of any cess, which many of us were expecting to have.
And lastly, I can say that though if I look from my perspective, that as an individual assessing what benefit I got, then it's nothing. So I can say that this budget is not self-centric, but this budget is society-centric. Now I think so that when we have learned speakers like Ahuja sir with us to comment on budget, then if I keep on speaking that it's not a right time. So with this brief word again with folded hand, I welcome Ahuja sir that in this situation also, he agreed to address all of us virtually. And in his, I can say when I was having a talk, like in this 3-4 days, he's going to have 70 sessions. Probably in that, he gave priority to Ahmedabad branch. For that, sir, Ahmedabad branch is obliged to you. Deepest gratitude to you for accepting this invitation and coming to address all of us. With this brief words, now I request our own Central Council member, CCM CA Aniket Talati ji, to give a keynote address to the participants. Thank you. Thank you very much, Honorable Chairman CA Fenil Shah. Most respected Girish Ahuja sir, the doyen of our profession, sir, if I can say the Bhishma of taxation, somebody who we all look up to as the final word on taxation. Sir, it's always a pleasure, honor and privilege to have you here in Ahmedabad. From so many years, you have always acceded to our request and addressed our members. In fact, your session has been the first to address membership on the budget changes. सर एक ही चीज है, हर साल आप एड्रेस करते हैं और सामने 3000-5000 लोग फिजिकल होते हैं. आज थोड़ा वर्चुअल इकट्ठा किया है लोगों को, तो आपको स्क्रीन पे होना पड़ेगा. शायद हम आपको एनर्जी फिजिकली नहीं दे पाएंगे, बट सर लेट मी अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर्स virtually that we are all equally keen to hear your thoughts, your views, your dissection of this budget, of what are the changes. Fenil bhai mentioned in the beginning that apparently it looks that there are not many changes, but I think the proof of the pudding, as they say, lies in the tasting. And 2-3 things which one can immediately look up to. One is the market. 1st Feb, 2nd Feb and 3rd Feb. एक बार करो तो एक्सीडेंट हो सकता है, 2 बार हो तो कोइंसिडेंस हो सकता है. 3 दिन से मार्केट जिस तरह से बढ़ रहा है, डेफिनेटली वी मस्ट ऑल गिव सम क्रेडिट टू दिस गवर्नमेंट दैट there is something in this budget that for 3 consecutive days the market has responded extremely positively. It's at an all-time high. So yes, maybe always change is not what the world is looking for. Some consistency in tax policy, some clear direction from our government is also what the industry at large and even the profession is looking at. And I believe this budget has given, which is testament from the market sentiment over the last 3 days, and also general sentiment when one is discussing with traders, with businessmen, with industrialists in Gujarat. Everybody seems to be very happy and satisfied. Maybe because there was an expectation कि एक नया cess आ जाएगा to recover the corona cost. That has not come. Maybe there were certain fears that additional taxation or revenue shoring up exercise will be done. That has not been ventured into. But one thing that I think I will have to speak on today is, which has impacted all of us, are the changes in the audit provisions, especially relating to tax audit and then relating to GST audit. And again, in no way will I be defending or trying to cover it up. Yes, it is a huge challenge for our profession. But those of you who have known me for all these years or who have heard me speaking, I've always shared this view and opinion that we as chartered accountants and professionals must not only always rely on work which comes from entitlement or which comes from certain statute. It may be bank branch audit, it may be tax audit or GST audit. Our profession, we are 3 lakh odd members in this huge country where the number of taxpayers are increasing. The FM has spoken about the taxpayer base going up. We are a 1 lakh practicing chartered accountant community, only 1 lakh urine generating community, if I can use the word. और हम 1 लाख लोग इस 130 करोड़ के देश के लिए कितने काम कर सकते हैं. Only thing is we have to appreciate and accept that when the country is moving towards international best practices, where such a low threshold on tax audit is not there, where there is not such concept of compulsory audits in many jurisdictions, somewhere the government also has probably felt that in the name of ease of doing business, they want to increase the threshold. They want to prove that if you are doing your things right, 95% income is coming in bank, 95% expenses going through your bank, you are dealing in a situation where
very clearly it can be established that, for example, there is a bogus invoice that is recovered from your premise, the penalties are steep, the taxation is high, and therefore the government maybe wants to extend one hand of trust and say, we will rely on you, you also pay your taxes, and in case you don't, well, we know the 68, 80, 100% plus penalty and tax rates which are applicable in such cases. So therefore, one, we have to appreciate that the world is changing, and therefore our service lines also have to evolve in accordance with where the world and the country is going. And second, again, I've said this at multiple forums and occasions, always bickering and going to the government saying, please extend due date, please extend due date. We are not able to comply on time. Somewhere this also has to stop. I can only request all of us with folded hands that even if in this year we can discuss about the pandemic year, the deadlines were extended, we were still hell bent. We have abused the government. And again, I respect the constitutional right of all of you under Article 19 of your freedom of expression. But when we express ourselves so aggressively on the social media, when we say that no, audits are not possible, returns are not possible, and we say we have too much pressure, I think with one stroke, the government has shown us how they can relieve us of all our pressures. And that relieving of pressure is something which was not anticipated and expected by us. But we all have to realize that at some level, activism by professionals on social media, on other forum, will have to be restricted. It is this very clients for whom we started, or some of us started, a war on Twitter. Those very industries have gone and said that we need ease of doing business. हम जिनके लिए लड़ रहे थे, उन्होंने ही जाके सरकार को बोला है कि हमें ease of doing चाहिए, and in that garb these changes have come in. So I think 2-3 important aspects we all also have to follow and understand in terms of how we conduct ourselves in social media, how we evolve our practice in this new and developing area. But let me, at a concluding remark, since all of us are here to hear Girish Ahuja sir say this with utmost confidence, it may be in the area of GST or it may be in the area of income tax. We may have certain competition from the law profession or other sister bodies. My firm belief is that as chartered accountants, we are a class apart. If we have that belief, if we are able to manage and show our intellectual differentiation between these professions, there is no reason, I believe, that even 1 rupee of practice of any of our chartered accountants in GST or income tax will reduce. The only thing is we have to learn to live in these times. And once again, my request, though I can appreciate your constitutional right to freedom of expression, Aniket Talati, Fenil Shah, Bishan Shah, or Harit Dhariwal saying something on social media is different. And CA Harit, CA Fenil, CA Bishan, if from that user ID something is mentioned, it is perceived totally differently. And I think that somewhere we all will have to appreciate and understand. If you have grievances, your institute is there, raise these issues. We are regularly raising all of these in turn with the relevant ministries. But yes, we are here in this situation. I'm sure, like I said, in terms of the profession, in terms of how we will deal with it and navigate with it, I have no fear that our profession will definitely shine out even in these circumstances, and huge professional opportunity still lies for all our members. With these words, I thank the chairman once again for inviting me. Sincere thanks to Girish Ahuja sir in his busy schedule. Sir, thank you for coming to Ahmedabad and always gracing this occasion. It is something that all members of Ahmedabad, all managing committee members of Ahmedabad look up to. And sir, we are extremely keen and eager to hear your views on the budget. Thank you very much. Very prompt address so that we all don't get misguided by the overview of our opportunities which we foresee from budget. Now I request C. Harit Dhariwal, Vice Chairman of Ahmedabad branch, to introduce the respected speaker, sir. Good evening, everyone. Respected Girish Ahuja sir, Aniket Talati, CCM, Fenil Chairman, and Vishen Bhai Secretary. I think I'll not take much of your time. I think we all are here to listen to Ahuja sir. I'll just say in one line what Aniket also mentioned, he's a Bhishma Pitama of income tax and a true inspiration for all of us. So thank you so much, sir, for once again accepting our invitation. And we always look up to you after budget speech to hear you speak. And I'm sure after your speech, many of us will go back and listen, read the finance bill again,
because of the clarity that you will give us. So thank you again, sir. And I will now request you to please take charge of the session. Good afternoon to everyone. Central Council, very young Central Council member, of course, Anik Talati ji, Chairman of the Ahmedabad branch, CA Fenil Shah ji, Vice Chairman Harit Dhariwal ji, CA Bishan Shah ji, the Secretary, and of course Sunil ji. Ladies and gentlemen, there must be many other dignitaries, but I can see only few of them. That's why I named them. The others I have not named them. Well, friend, this time the budget is very technical and many clarifications, which we were always having problems, have been solved. Maybe against us, that is a different story. And maybe in some favor, that is also there. But at least clarity is there. We will avoid litigation. Unnecessary litigation keeps on hanging and nothing works out to be that. The government is interested to cut down the litigation. The government has done some wonderful things also, like you know that they have now changed the whole concept of reassessment taxation. That will also help you out to know that. So I'm taking clause by clause this budget, but you will have to listen carefully. There is first section which has been changed is Section 2, Clause 11. Section 2, Clause 11 talks about the meaning of block, definition of block of asset. What does it say? Block of asset is the class of, a block of asset is a group of asset forming part of a class of asset comprising of tangible asset being buildings, machinery, furniture, and plant, and intangible asset being technical know-how, patents, copyrights, trademarks, licenses, franchises, or any other business or commercial right of similar nature. This is the definition of block of asset. Why you need the definition of a block of asset? Because you are allowed depreciation under income tax on the basis of block of asset. You all know that. There are 4 blocks in tangible asset. One is another 3 blocks now. One is building, another is furniture, and third, of course, is machinery and plant. But machinery plant having different depreciation can have different blocks, in respect of which same rate of depreciation is allowed. But when you read the intangible asset, all is in one block, 25%. And you know that it starts with technical know-how, patents, copyrights, trademarks, licenses, franchise, or any other business or commercial right. आप इसमें देखिए, nowhere it is written goodwill of a business or a profession. Nowhere it is written. But Swim Securities Limited Supreme Court judgment said that goodwill will also be a capital asset, depreciable asset. Goodwill will be a depreciable asset. If you have purchased goodwill, you will be eligible for depreciation on the goodwill under intangible asset, though no specific mention of goodwill was there. No specific mention of goodwill was there. Now, what have they done? They have said intangible asset means technical know-how, patents, copyrights, trademarks, licenses, franchises, or any other business or commercial right of similar nature, not being profit of a business, goodwill of a business or profession. So what they have added is not being goodwill of a business or a profession, meaning thereby goodwill will not be subject to any depreciation. It may be a capital asset, but it will not be a depreciable asset. So they have overruled the judgment of Swim Securities Limited, where the Supreme Court has decided. देखिए बहुत प्रॉब्लम आएगी. Mergers, acquisitions, amalgamations. When you do it, lot of goodwill is created, and you say that you have paid for goodwill. Some say the difference between the value and the asset which you acquire is taken as goodwill. This is goodwill of a business. They said nothing doing. We will not allow goodwill of a business as a depreciable asset. तो क्या है, नॉन डेप्रिशिएबल हो गई.
तो नॉन डेप्रिशिएबल हो गई, गुडविल तो रहेगी। जैसे लैंड है, नॉन डेप्रिशिएबल है, लेकिन लैंड तो बढ़ती है, गुडविल का क्या पता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और गुडविल में तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 0 होती है। यू नेवर नो, इट विल गो अप और इट विल गो डाउन। एक बड़ी इंडस्ट्री आज है, रिलायंस आज है, कल क्या होने वाला है किसी को क्या मालूम है, जो भी है। अब इस कॉन्सिक्वेंटली 32(1) section where you said the depreciation is allowed on tangible and intangible asset, there also in intangible asset there is not being the profit of a business, goodwill of a business or profession. So you've been told no depreciation. Explanation 3 also changed. There also word of intangible asset, they have inserted not being profit, goodwill of a business or profession. तो क्या हुआ, गुडविल कैपिटल एसेट तो है, इंटेंजिबल तो है, लेकिन अब डेप्रिशिएबल नहीं होगी। आपको पता है सेक्शन 55 ऑलरेडी है। उस सेक्शन 55 में डेफिनेशन थी सेल्फ जनरेटेड अगर है गुडविल ऑफ ए बिजनेस और पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और बिजनेस और कमर्शियल राइट, तो उसकी सेल्फ जनरेटेड की कॉस्ट निल ली जाती है। हर चीज में ठीक करो ना, उसकी कॉस्ट निल ली जाती है। लेकिन अगर आपने परचेज की है, उसकी प्राइस ली जाती है, प्राइस विच यू हैव पेड फॉर इट। लेकिन इंटेंजिबल एसेट में पेटेंट, कॉपीराइट तो हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने गुडविल को हटा लिया। अब क्या होगा, अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें तो डेप्रिसिएशन होनी ही नहीं थी। बट नाउ यू हैव बॉट गुडविल and you might have given a lot of amount for the purchase of goodwill during merger, amalgamation, slump sale, for any other reason, take over, वो गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, खड़ी रहेगी एसेट। अब बढ़ेगी या कम हो, जब तक वो एसेट बेचोगे नहीं तब तक तो कोई कैपिटल गेन भी नहीं होगा, नहीं तो खड़ी है, the asset is with you. So अब क्या हुआ, जो पुरानी गुडविल के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, it is already a depreciable asset. They say in future it will not be allowed. तो क्या होगा, वो ब्लॉक से, intangible allowed से you will have to deduct the return on value of that goodwill after whatever depreciation so for charge. And that's why in section 50 also they have mentioned that while computing the short-term capital gain on the transfer of asset, we will give you the method of separating out the goodwill for that purpose. अब आइए, सेक्शन 55 में कॉस्ट बता दिया, सेल्फ जनरेटेड है तो निल है, परचेज है तो प्राइस यू हैव पेड फॉर इट। लेकिन पहले एक चीज बताऊं, अगर प्राइस मैंने पे करी हुई है तो फिर तो आगे गुडविल बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा, नहीं बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा। और वहां लिखा है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ गुडविल इज निल एंड यू आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 April 2001। ना कॉस्ट निल होती है, मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है, तो वो गुडविल आपके पास है। अब इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा अगर आपने परचेज करी है। लेकिन सपोज पुरानी गुडविल है जिस पे डेप्रिसिएशन ले चुके हो, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट? द कॉस्ट विल बी द प्राइस यू पेड माइनस द डेप्रिसिएशन व्हिच हैव बीन अलाउड टू यू टिल डेट, वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो समझ में आ रहा है, ये किया। आगे से गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन किया। अभी तक एक लकूना था सेल्फ जनरेटेड एसेट में, गुडविल ऑफ ए बिजनेस लिखा था, गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन नहीं लिखा था। तो हम कहते थे गुडविल ऑफ प्रोफेशन बेचेंगे तो उसमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, वो कैपिटल रिसीट होगी, और जिसको मिलेगी गुडविल वो डेप्रिसिएशन ले लेगा, वो डेप्रिसिएशन ले लेगा। लेकिन अब तो सेल्फ जनरेटेड में गुडविल ऑफ ए बिजनेस के साथ प्रोफेशन भी डाल दिया, सारा बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो प्रोफेशनल गुडविल बेचेगा तो कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा। सेल्फ जनरेटेड की कॉस्ट क्या होती है? निल। सेल्फ जनरेटेड की कॉस्ट निल है तो आपको कैपिटल गेन तो लग गया। पहले क्या होता था, प्लानिंग कर लेते थे, प्रोफेशन की गुडविल बेच दी, बेची, माफ हो गई, और वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेता था और उसको डेप्रिसिएशन 25% मिल जाती थी। अब तो प्रोफेशन की भी गई, बिजनेस की भी गई, और अब आपको गुडविल एक एसेट खड़ी रहेगी, फिक्टिशियस एसेट खड़ी रहेगी, जब तक बिकेगी नहीं तब तक कोई प्रॉफिट नहीं होगा, गिर गई तो भी है, अदरवाइज खड़ी रहेगी किताबों में। अब ये लॉ आया सेक्शन 2 क्लॉज 11
read with section 32 subsection 1, read with explanation 3 to section 32(1), read with section 50, read with section 55. ये मैंने आपको बता दिया पहला पॉइंट गुडविल का। आइए अगला पॉइंट करते हैं। मैं चाहता हूं, मेरे पास सिर्फ सामने हरित है, मैं दीवारों से बात कर रहा हूं, 4-5 आदमी मेरे सामने रहे तो मुझे लगता है कि कुछ समझ रहा। बिशन जी आ गए, सिर जब हिलता है तो पता लगता है कि मुझे कुछ बातें कर रहा हूं और उनको कुछ समझ में आ रहा है। और मैं कई बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि आंसर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये पूछूंगा समझ में आ गया कि नहीं आया, तो ये चीज रहती है। अब नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 14। देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज आर कमिंग आउट विद वेरियस प्रोडक्ट्स। एक नया प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनी ने लिया है जिसका नाम रखा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं यूनिट इंश्योरेंस प्लान नहीं कर रहा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ए न्यू product has been launched by the insurance company. This has two components. One component is of investment, and the another component is of insurance. कि आपका इंश्योरेंस भी होता है और आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में भी लगता है और दोनों में आपको पैसा मिलता है। देखिए, अब ये मैच्योर हो गया। सपोज जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है, देयर इज सेक्शन 10 clause 10D which says any payment received from the insurance company is fully exempt provided you have paid premium not more than 10% of the sum assured. हाँ, वो डिसेबल्ड वालों के लिए 15 था, अदरवाइज 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या किया है, प्रोवाइजो 4th, 5th, 6th एंड 7th प्रोवाइजो डाल दिए गए हैं। किसके नीचे? 1010D को कहता है प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई। दिस क्लॉज का मतलब क्या है? 1010D मतलब एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी। द एग्जेम्पशन विल नॉट बी गिवन इन केस ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड ऑन और आफ्टर 1st of February 21। ये परसों की बात है। 1/2/2021 के बाद जो इंश्योरेंस पॉलिसी इशू होंगी उस पर आपको 4th प्रोविजन कहता है कि ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग एज ए प्रीमियम इन एनी प्रीवियस ईयर टिल इट्स मैच्योरिटी ए सम एक्सीडिंग ₹2,50,000। अगर इस पॉलिसी में कोई प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर आपने दे दिया एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो उस पॉलिसी में 1010D नहीं लगेगा। मतलब क्या होगा? एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। प्रोवाइजो 5 डाल दिया 5th कि रुकिए, हो सकता है आप 2 पॉलिसी ले लें, पॉलिसी ए पॉलिसी बी, 2 लेकर कहें कि 2.5 लाख दोनों में हो जाएगा। कहते हैं नहीं, aggregate amount in both the policy or more than should not exceed 2,50,000. समझ में आ गया सर? 4th proviso and 5th proviso. 4th talks about one policy, premium paid more than 2,50,000. 5th talks about more than one policy, aggregate premium paid more than 2,50,000. Section 1010D will not be applicable. तो हरीश जी, जब मैंने पैसे दे दिए उसका क्या होगा? और मुझे पैसे आने हैं, तो कहता है जी रुकिए, अब ये क्या होगा? इसे कैपिटल एसेट मान लेंगे। किसको? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या कहेंगे? कैपिटल एसेट। हरी जी, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दे रखी है और सेक्शन 2 क्लॉज 14 कहता है कैपिटल एसेट ए इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेसी वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस और नॉट। और बाद में बी आ गया था, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। उसको भी कैपिटल एसेट मान लिया था, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे थे, उसको कैपिटल एसेट मान लिया। अब क्लॉज सी भी डाल दी है। क्लॉज सी सेज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी टू विच प्रोवाइजो 4th एंड प्रोवाइजो 5th आर एप्लीकेबल। समझ में आ गया क्या मतलब? जहां पर 2.5 लाख से ज्यादा दिया हुआ है
तो उस केस में हम उसको पॉलिसी को कैपिटल एसेट मान लेंगे। आज तक इंश्योरेंस पॉलिसी कैपिटल एसेट नहीं होती थी। आज तक इंश्योरेंस पॉलिसी कैपिटल एसेट थोड़ी होती थी, पेमेंट दी जब आएगा माफ हो गया। अब उसको कैपिटल एसेट मान लेंगे। समझ आ गया? अगर 2.5 लाख से ऊपर कभी प्रीवियस ईयर में दिया, अगर नहीं दिया तो अलग बात है, दिया है तो 2.5 लाख से ऊपर तो आपको कैपिटल एसेट मान लेंगे। सर जब कैपिटल एसेट मानेंगे तो फिर कैपिटल गेन भी होगा? कहता होगा। वो कैसे निकालेंगे? कहता उसके लिए 45(1)(b) सेक्शन डाले हैं। 45(1)(b) आपके यहाँ 45(1) है, 45(1) कैपिटल ए है, 45(2) है, 45(3) है, 45(4) है, 45(5) है, ये 5A भी है। ये कौन सा 1B आ रहा है? कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 45(1). 45(1) कहता है there is a capital gain from the transfer of capital asset which may be liable to be taxed in the previous year in which the transfer took place. जब ट्रांसफर होगी तो इसमें ट्रांसफर क्या होना है? इसमें तो मैच्योरिटी का पैसा आना है। तो उसमें लिख दिया that notwithstanding anything contained in section 45(1) in case of a unit linked insurance policy to which proviso 4th and proviso 5th have become applicable. तभी तो कैपिटल सेट बना है। have become applicable, the capital gain will arise in the previous year in which the amount is received from the insurance company. जब पैसा इंश्योरेंस कंपनी से आएगा उस वक्त कैपिटल गेन लगेगा। तो कंसीडरेशन प्राइस क्या होगी? जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया, ठीक है जी। और कॉस्ट क्या होगी? जो पैसे आपने दिए इतने सालों में, यू हैव पेड प्रीमियम सो मेनी इयर्स, वो सारा मिलाकर वो कॉस्ट हो जाएगी। फिर आप जरूर पूछोगे मेरे से, सर कॉस्ट को इंडेक्स करेंगे? अगर लॉन्ग टर्म है तो क्या इंडेक्स करोगे? मैं कहूंगा नहीं करेंगे। वो कहे जी कैसे नहीं करेंगे? क्योंकि इसको उन्होंने 112A में ले लिया। 112A में लिख दिया है, जहां लिखा था ना यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, उसके साथ डाल दिया है और ULIP, unit linked insurance policy to which proviso 4th and 5th is applicable. मतलब क्या हुआ? 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा लेकिन इंडेक्सेशन नहीं होगा और आपको टैक्स लगेगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन। कितना? 10% विदाउट इंडेक्सेशन। और आपको पता है 112A में 1 लाख रुपया माफ भी होता है 10% अबव 1। तो ये यूलिप का आ गया। क्या यार, छोटी सी चीज के लिए क्या घुमा दिया और हमें आपने कैपिटल गेन कह दिया। ये माफ नहीं करेंगे 10(10)(d). सारे प्रोविजो 4th डाला, प्रोविजो 5th डाला, लेकिन प्रोविजो 6th भी डाला। उस प्रोविजो 6 में कहा हाँ अगर डेथ के बाद पैसा मिलता है तो 10(10)(d) लगेगा, तब लगेगा, तब इसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। इवन इफ यू हैव पेड 2,50,000। अरे मैं सोचता रहूंगा कब कैपिटल एसेट है कब नहीं है। अगर डेथ हो गई तो पूरा माफ, फिर कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, फिर 10(10)(d) में जाएगा क्योंकि लीगल एयर को मिलेगा। लेकिन अगर आपको मिल रहा है तो उस केस में इसको कैपिटल एसेट मानिए, कैपिटल गेन 45(1)(b) में निकालिए और टैक्स 112A में दीजिए। क्लियर हो गया? अब हम आगे जा रहे हैं। ये 2 मैंने पॉइंट बताए, आपने हरित जी पढ़ा होगा। अभी मैं सिर्फ हरित का ही नाम ले रहा हूं, बाकी किसका लूं? कोई सामने नजर आएगा तो लूंगा ना। खुश है, हरित भी मेरा नाम लिया जा रहा है तो अच्छी बात है। अब सामने कोई आएगा तो नाम पढ़ लेगा। इसका नाम नहीं पता, स्टडी कैफे लिखा, क्या लिखा ना। there is one girl but I am not able to see her name. अगर उसका नाम सामने आ जाता तो मैं उसका नाम भी ले लेता। वो भी कहती कि मेरा नाम लिया है, अभी तक तो हरित का ही नाम चल रहा है, मैं क्या बोलूं। आइए चलिए सर आगे चलते हैं। अब आगे सुनिए, ये आपने अभी पढ़ा बैंकों को कि एक बैड बैंक बनाने जा रहे हैं जिसमें एनपीए ट्रांसफर कर देंगे। लोन बुक में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको ट्रांसफर कर देंगे एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में और ट्रांसफर करके वो मैनेज करेंगे। अब बैंकों को कहा आप अपना लेंडिंग करिए, आप इसके ऊपर परेशान मत कीजिए, सारे लोन वहां ट्रांसफर करिए। ट्रांसफर करेंगे ना सर, लेकिन डीमर्जर में तो लिखा है यू ट्रांसफर 1 or more than 1 undertaking ना to a resulting company where all the assets are transferred, all the liabilities are transferred। ये लिखा है ना डीमर्जर में, सेक्शन 2 clause 19AA में। अब इस केस में तो आप ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो और कोई ज्यादा चीजें तो ट्रांसफर ही नहीं कर रहे।
तो उन्होंने पता क्या लिखा है 219A में, reconstruction or splitting up a public sector company by transferring the asset to another public sector company will also be treated as demerger. उसको भी demerger दे दिया। हम बेनिफिट दे रहे हैं, टैक्स नहीं लगाएंगे जब ये सारी एसेट किसको ट्रांसफर कर देंगे, दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी। समझ में आ रहा है? नोट है डीमर्जर, वो रिजल्टिंग कंपनी, लेकिन वो रिजल्टिंग कंपनी भी पब्लिक सेक्टर होनी चाहिए। ठीक है, अब लॉसेस आएंगे बहुत, तो उसे कह दिया 72A में इसको भी ऐड कर दिया, that the losses will be allowed to be carried forward for a fresh period of 8 years. तो ये है सर 219AA read with section what you call 72 capital A. क्लियर हो गया? आगे बढ़ता हूं। लास्ट ईयर जब मैं वो आया था अहमदाबाद में, ये लेक्चर हो रहा था, 4-5 हजार थे, 4 हजार जो भी 5 हजार लोग थे, आज तो अभी तक 897 ही हुए हैं, लेकिन थे। वो हुआ है कि उनको पता है बाद में यूट्यूब में सुन लेंगे, बाद में कहीं ना कहीं, और मेरे तो 10 लेक्चर हो चुके हैं, कईयों ने सुन भी लिया होगा उसका। मैं आपको क्या सुनाना चाहता हूं, देखिए लास्ट टाइम आया था that if you are a non-resident, आप बाहर रहते हैं, you are a non-resident, and if your total income, excluding the income from foreign source, exceeds 15 lakh in Indian total income, exceeds 15 lakh, and you are not liable to pay income tax in any country by reason of your domicile, residence, or criteria of similar nature, तो आपको हम डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे डीम्ड रेजिडेंट। हमने दुबई वालों को कहा था, और या उनको अपनी कहा जिस कंट्री में टैक्स नहीं लेता, तो हम आपको इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। और डीम्ड रेजिडेंट मान के फिर हमने आपको एक कंसेशन दे दी थी, आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या टैक्स करेंगे, इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन which is controlled from India or set up in India, although that business is outside India or profession is outside India. ये कहा था। अब लोगों ने शोर मचाना करा, दुबई वाले, कुवैत वाले, कि भाई सर क्या बातें कर रहे हो, हमारे यहाँ तो टैक्स ही नहीं है, तो आप कहते हैं नॉट लायबल टू टैक्स। अरे लायबल तब होगा जब टैक्स होगा, जब टैक्स नहीं है तो नॉट लायबल टू टैक्स वाली बातें क्यों करते हैं। तो इन्होंने पता क्या किया है, सेक्शन 2(29) में लायबल टू टैक्स को डिफाइन कर दिया, और जो लायबल नहीं होगा वो नॉट लायबल हो गया। एग्जेम्पशन वाली बात ही खत्म, लायबल को डिफाइन कर दिया। कहता है लायबल टू टैक्स इन केस ऑफ ए पर्सन मींस द लायबिलिटी ऑफ ही इज लायबल फॉर ए टैक्स लायबिलिटी इन एनी कंट्री एज पर द लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री। इन एनी कंट्री इज लायबल टू टैक्स। और वो किसी भी कंट्री में लायबिलिटी टैक्स होगा था, वो नॉट लायबल टू टैक्स हो जाएगा। और subsequently income is there, but if the exemption is given on that income, तो भी माना जाएगा he is liable to tax। तो मेरा पॉइंट ये है, अरे वहां टैक्स लगता ही नहीं है, तो he is not liable for any liable to tax का मतलब not liable का मतलब आप आ गए, तो उनको कवर करके उनको ये कवर कर, गलती जो है ना वो सुधार ली गई। ये 229A में लिखा है। अब देखिए ये जो श्रम सेल है ना, श्रम सेल डिफाइन की हुई है सेक्शन 2(42)(c) में। वो कहता है श्रम सेल मीन्स सेल ऑफ एन अंडरटेकिंग और ए डिवीजन, ट्रांसफर ऑफ एन अंडरटेकिंग और ए डिवीजन एज ए रिजल्ट ऑफ सेल फॉर अ लम्प सम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग द प्राइस टू ईच एंड एवरी एसेट व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब लिखा है एज ए कंसिडरेशन फॉर सेल लिखा है। तो कहते हैं सेल तो हमेशा जो होती है वो तो मॉनेटरी कंसिडरेशन की होती है, अंडरटेकिंग एज ए सेल तो वो तो मॉनेटरी होती है। अब आपने अगर एक्सचेंज कर दिया श्रम सेल में तो वो तो आएगा ही नहीं। आप तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में तो लिखा है ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रेलिक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, और आप कह रहे हैं सिर्फ सेल तो एक ही काइंड है। तो अगर मैंने कोई उसके बदले मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं लिया, एक्सचेंज कर लिया, तो क्या सेल नहीं मानी जाएगी। तो इन्होंने इस डेफिनेशन को अमेंड कर दी एज ए फॉर लिखा ना फॉर सेल, वहां लिख दिया बाय एनी मींस, ट्रांसफर
ट्रांसफर अंडरटेकिंग बाय एनी, पहले लिखा था ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग बाय वे ऑफ सेल और लिखा बाय एनी मींस, और बाय एनी मींस को ट्रांसफर कह दिया, सेल एक्सचेंज सब आ गया। तो ये डेफिनेशन किसी कोर्ट की जजमेंट की वजह से चेंज करी और स्लम सेल को और कोई चेंज नहीं किया, तो आपको बता दिया। नेक्स्ट चीज देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और सर्टेन पब्लिक सेक्टर कंपनी आर अलाउड टू इशू जीरो कूपन बॉन्ड, और वो जीरो कूपन बॉन्ड का ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है, लेकिन अब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को भी अलाउ कर दिया टू इशू जीरो कूपन बॉन्ड। बस इतना ही चेंज है, इसमें और कोई चेंज नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। पिछली बार मैंने अपनी गलती मानी थी जब मैं वहां लेक्चर दे रहा था कि मेरे से एक गलती हो गई, इनकम टैक्स वाले को एक लूप होल बता दिया और उसने उसको प्लग कर दिया। अब तो उन्होंने एक और मार दी। ध्यान से सुनना जरा हरीश जी। हुआ क्या, लास्ट टाइम मैंने उसे कहा था कि एक हमारे यहाँ लॉ है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय टू द एक्सटेंट ऑफ 12% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। 12% सैलरी तक माफ होता है। तो ये जितने सीएफओ सीईओ बड़े बड़े थे ना, ये प्लानिंग करते थे। क्या, लेट्स से सैलरी ईयर की 5 करोड़ है या 10 करोड़ है, 12% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो वो पूरी डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिल गई, एम्प्लॉयर गॉट फुल डिडक्शन ऑफ दैट 12%। लेकिन वो अमाउंट अगर 5 करोड़ है तो 60 लाख, और 10 करोड़ तो 1 करोड़ 20 लाख आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया और आपके हाथ में माफ है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक मेच्योरिटी नहीं आती वो भी माफ है। एम आई राइट? करोड़ों रुपया आप ले गए आफ्टर रिटायरमेंट और आपने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया, और उस अमाउंट पर सारा डिडक्शन एम्प्लॉयर तो ले चुका है जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, और आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे भी नहीं दिया, और जो इंटरेस्ट आया वो भी टैक्स फ्री है सेक्शन 10, तो वो तो फायदा हो गया। तो मेरे मुंह से निकल गया था कि ये प्लानिंग होती है। मेरा अपना जब मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, एक को 5 करोड़ मिलता था, एक को 6 करोड़ मिलता था वहां कंपनी में। मुझे बहुत गाली पड़ी, मरवा दिया सर आपने, और उन्होंने भी किया कि यार ये क्या किया। हमारा 60 लाख रुपया एम्प्लॉयर देता था, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर है, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, लेकिन हमें वो 60 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। एम्प्लॉयर डिडक्शन ले लेता और मेरे हाथ में माफ था, और मुझे पैसे चाहिए नहीं, 5 करोड़ मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे तो एफडी बनानी थी, वो बन गई, एफडी पड़ी है और टैक्स फ्री एफडी है। मजा आ गया। अब क्या कर दिया इन्होंने, the exemption will be to the extent of 12% of the salary or rupees 7,50,000, whichever is less। मर गया। 60 लाख कंट्रीब्यूट हुआ, 7.5 लाख माफ हो गया, और 52,50,000 will be treated as perquisite in the hands of the employee, और perquisite देकर मार दिया, और साथ में लिख दिया इस अमाउंट को जिसको परक्विजिट दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल होगा। पर क्या ना, वो बेचारा इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा और ये भी परक्विजिट माना जाएगा। अब गलती मेरे से हो गई, बता दिया। हमें तो कई चीजें पता होती है, लेकिन गलती हो गई, कर दी। इस बार तो उन्होंने एक और अपने आप ही कर दिया। होता क्या है सर, जिस एम्प्लॉय के पास पैसे ज्यादा होते हैं वो कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में ज्यादा कर देता है, रिकॉग्नाइज में भी, और कहीं आप इसमें सब मेरी सैलरी 10 लाख है, चलिए मैंने 6 लाख रुपया उसमें करा दिया, किसमें, प्रोविडेंट फंड। मालूम है मुझे 1.5 लाख रुपया डिडक्शन मिलती है एटीसी में, लेकिन 6 लाख रुपया जमा हुआ तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो मेरा माफ है ना। अरे 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट तो माफ है ना। तो मेरे पास तो मुझे तो एफडीआर बनानी थी, तो मैंने एफडीआर, सेफ एफडीआर बना दी, और 8%, 9%, 7%, 10% इंटरेस्ट माफ करा लिया। मेरे को ऑथर भी यही करते थे, डॉक्टर रवि गुप्ता क्या करा करते थे, सैलरी कॉलेज से मिलती थी, प्रैक्टिस भी करते थे, तो सैलरी सारी की सारी प्रोविडेंट फंड में डालते थे। डिडक्शन तो 1.5 लाख की मिली, लेकिन जितनी सैलरी डाल दी उसके ऊपर क्या हुआ, इंटरेस्ट जो मिलेगा
वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, चाहे 10 साल बाद मिले, 15 साल मिले, एग्जेम्प्ट हो गया तो टैक्स फ्री एफडीआर बन गई ना बिशन जी, टैक्स फ्री एफडीआर बन गई और करोड़ों रुपए आ गया। अब उन्होंने ये भी बेड़ा गर्क कर दिया, लिखता है इफ ए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स टू हिज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ एन अमाउंट exceeding rupees 2,50,000, अमाउंट एक्सीडिंग 2,50,000 कर दीजिए, रिबेट तो आपको 1.5 लाख की मिलनी है, लेकिन एनी इंटरेस्ट विच इज क्रेडिटेड ऑन द अमाउंट exceeding rupees 2,50,000 shall become taxable, हम उसको टैक्स कर देंगे इन द मैनर कंप्यूटेड। मर गया ना बेचारा, अब तो 2.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता, तो मैं जो एफडीआर बना के रख लेता था टैक्स फ्री, वो तो नहीं बनेगी, मैक्सिमम 2.5 लाख, 1.5 लाख का रख लो मैक्सिमम। सर पीपीएम में ये लगेगा नहीं, पीपीएम में तो होता ही 1.5 लाख है, ये तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे, अब आप 2.5 लाख से ऊपर करोगे तो फायदा क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो टैक्सेबल हो गया, इंटरेस्ट तो टैक्सेबल हो गया, डिडक्शन तो आपको 1.5 लाख से ऊपर मिलनी नहीं थी, अब इंटरेस्ट तो टैक्सेबल हो गया। ठीक है, ये सेक्शन 10(11) और सेक्शन 10(12) में प्रोवाइजो डालकर कह दिया दैट इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ दैट if you have contributed more than 2,50,000, interest accrued to that will be taxable and it will be computed in the manner prescribed. Clear हो गया सर? 10(11), 10(12). अब मैं चाहूंगा जितने भी ऑडियंस है बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी अच्छी चीजें और बहुत क्लैरिटी बताने जा रहा हूं चैरिटेबल ट्रस्ट के केसेस में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आई हैं, मैंने करवाई हैं, और क्योंकि ये बहुत दिक्कत होती थी, पहला वाला मैंने नहीं कराया, बाकी कराया। आपके पास सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 3IAD और सब क्लॉज 3IAE है। सब क्लॉज 3IAD क्या कहता है? इनकम ऑफ ए यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन not for making any profit but for imparting education shall be exempt if the gross receipt of that institution do not exceed how much? 1 crore। वो तो लिखा specified amount, that is 1 crore। मालूम है ना जी, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी 1 करोड़ से कम ग्रॉस रिसीट है, income is totally exempt and they only have to file return of income, but they don't want any approval, they don't have to do any audit, there is no condition of 85% also, there is no condition of 85% also। On the other hand 3IA में लिखा है income of a hospital or a medical institution not for making any profit but philanthropic purposes shall be exempt if the gross receipt do not exceed 1 crore। है ना सर, दोनों 1-1 करोड़ वाले। अब रिलीफ मिल गया, इस 1 करोड़ की लिमिट 5 करोड़ कर दी, अप टू 5 करोड़। मतलब कि अगर छोटा कॉलेज यूनिवर्सिटी एटसेट्रा है और उसका ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ से ऊपर नहीं है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, बाकी तो आप खर्च करिए, एक्यूमुलेट करिए, खर्च करिए, कुछ भी करिए, ठीक हो गया। लेकिन नीचे एक डाल दिया कि रुक जाइए, इतने खुश हो गए हो लेकिन थोड़ा सा तो नाराज हो जाओ। क्या? इफ यू हैव बोथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एज वेल एज हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन, तो दोनों का मिलाकर 5 करोड़ होगा। पहले तो दोनों का अलग अलग 1-1 करोड़ था, एग्रीगेट 5 करोड़ होगा। अगर दोनों है, हाँ अगर एक ही है तो 5 करोड़। क्लियर हो गया? 5 करोड़ तक आपको कुछ नहीं कर, यहां तक तो उन्होंने किया। अब आइए, आपको पता है चैरिटेबल ट्रस्ट में कॉर्पस डोनेशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। और ये पिछले साल मैंने 1023C में भी करा दिया था, कॉर्पस डोनेशन टू ए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल आल्सो बी फुल्ली एग्जेम्प्ट बाय इंसर्टिंग एक्सप्लेनेशन अंडर प्रोविजो 3। मैंने करा दिया, लेकिन इनसे एक गलती हुई है बड़े सालों से। ये कॉर्पस डोनेशन आप कहाँ रख सकते हैं? कहीं भी रख सकते हैं क्या? आप कैश में रख सकते हैं, शेयर्स में रख सकते हैं,
किस में रख सकते हैं? कहीं नहीं लिखा था दैट शुड बी केप्ट अंडर 11.5। अब इन्होंने क्लियर कर दिया है द कॉर्पस डोनेशन विल बी एग्जेम्प्ट ओनली व्हेन द अमाउंट इज इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन ए मोड गिवन अंडर 11.5। 11.5 में आपको पता है कि आप शेयर नहीं ले सकते। 11.5 में तो आप बैंक डिपॉजिट्स, सिक्योरिटीज, नोटिफाइड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, यूनिट ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते, या इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते। बाकियों के लिए कॉर्पोरेट फंड 11.5 में नहीं रखेंगे तो उसको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया? पहले नहीं था 11.5, अब 11.5 डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। अब है क्या सर? आपको मालूम है मैंने एक जजमेंट आई थी सुबोस फाउंडेशन की कि भैया आज 1 करोड़ रुपए आया और आपने 1.25 करोड़ खर्च कर दिया, तो जो 25 लाख एक्स्ट्रा खर्च किया वो आप कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल एप्लीकेशन मान लेना। इसको तो खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, ऑलरेडी लिख दिया एक्सप्लेनेशन में कि नहीं होगा कैरी फॉरवर्ड। लेकिन एक कुछ किया है, वो ध्यान से सुनना, मैंने कराया। सुनिए क्या है, देखिए इस साल आपकी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ है, लेकिन खर्चा 1 करोड़ 25 लाख हो गया। अगर आप कॉर्पस फंड से निकाल कर करेंगे तब तो एक अलग चीज होगी, लेकिन अगर वो 11 वो वाला पड़ा हुआ है 15% वाला, वो अलग चीज होगी। अगर आप कॉर्पस फंड से निकाल के खर्च करेंगे, उसने पता क्या कहता है, ये एप्लीकेशन माना ही नहीं जाएगा। नाराज मत होना, कोई बात नहीं माना जाएगा, कोई बात। मतलब 1 करोड़ का 1 करोड़ 25 किया, 25 यूज किया, ये एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन रुकिए, नेक्स्ट ईयर्स में आपने वो जितना पैसा था कॉर्पस फंड से निकाला था उतना वापस कॉर्पस फंड में कर दो, 11.5 में डालो, तो वो एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, कैरी फॉरवर्ड हो गया ना। लेकिन सिर्फ कॉर्पस वाला, वो 15% वाला नहीं। कहला 15 पे तो आप ऑलरेडी एग्जेम्पशन ले चुके हो। दो क्या करा है, सपोज आई स्पेंड दिस ईयर 2 करोड़, माई रिसीट ड्यूरिंग द ईयर वाज ओनली 1.50, excess application how much, 50। if you have used this 50 from the corpus fund, हम इसको एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। आप 1.5 करोड़ की एप्लीकेशन लेकर रिटर्न भर देंगे और 10B में भी 1.5 करोड़ आएगा, 50 नहीं आएगा। लेकिन रुकिए, अगले साल मेरे पास पैसे आ गए और मैंने वो पैसे 50 लाख जो यूज किए थे वो कॉर्पस फंड में डाल दिए, तो वो 50 लाख एप्लीकेशन अगले साल का माना जाएगा। अगले साल मैंने 20 डाले तो 20 माना जाएगा, उसके अगले साल 30 डाल दिए तो मान लिया जाएगा। तो मेरा कॉर्पस फंड वहीं पे रहेगा, चेंज नहीं होगा, वो उतना ही आ जाएगा अगर मैं उसको वापस कर देता हूं। एक प्रकार से मैंने लोन लिया कॉर्पस से और लोन देके कॉर्पस को बंद। ठीक है सर, क्लियर है? कोई गलत बात तो नहीं करी, अदरवाइज हो नहीं जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन ये मान लिया जाएगा जब वापस करोगे तो एप्लीकेशन मान लिया। ठीक है सर, ठीक है जी, क्योंकि हमने कॉर्पस से नहीं किया, करंट इनकम से वापस कर दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं बहुत बात जब पढ़ाता हूं चैरिटेबल ट्रस्ट ये बता चुका हूं, लेकिन कुछ महानुभाव मेरी बात को इसलिए नहीं मानते, वो कहते लिखा कहां है। मैं ये कहता था, सपोज अरे जी यू वांट टू बाई ए बिल्डिंग फॉर द कॉलेज और 3 करोड़ की बिल्डिंग लेनी है और आपके पास बैंक में 1 करोड़ पड़ा है, तो यू बोरो 2 करोड़ फ्रॉम द बैंक एंड यू बाई ए बिल्डिंग फॉर 3 करोड़, ले ली। अब सवाल आया एप्लीकेशन इस साल का क्या अमाउंट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। कुछ लोग कहते थे 3 करोड़ रुपए एप्लीकेशन। मैं कहा कैसे हो गया, कहते मैं 3 करोड़ की बिल्डिंग ली है। मैं कहा 2 करोड़ तो लोन लिया है, लोन को कैसे एप्लीकेशन इनकम मान लेंगे, हमने लोन को अप्लाई किया है एंड लोन इज नॉट एन इनकम, तो हाउ कैन यू टेक एन एप्लीकेशन। कहते जी अकाउंटेंसी में क्या होता है। मैं अकाउंटेंसी की बात छोड़ दो, अकाउंटेंसी में तो आप 3 करोड़ की बिल्डिंग डालोगे, 1 करोड़ रुपया बैंक कम हो जाएगा और 2 करोड़ रुपया लाइबिलिटी में डाल दो, बैलेंस शीट तो बन गई, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन इज ओनली 1 करोड़। ये उन्होंने लिख दिया है। कहते हैं फिर 2 करोड़ का क्या होगा, जब मैं उस लोन को रीपे करूंगा उस साल एप्लीकेशन मान लेंगे फॉर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू।
that will be treated as application of the previous year in which loan is repaid. Clear हो गया? 1023C और 1112 में दोनों में यही चेंजेस करके काफी क्लैरिटी ले आए हैं. अब आपको डाउट नहीं होने का चांस होगा. क्लियर है सर? मैंने बड़े आराम से 1023C 11 को समझाया और आपको बता दिया. आगे चलिए. Employee contribution to provident fund or ESI as per section 36 subsection 1 BA is allowed if the same is paid, allowed as deduction if the same is paid on or before the due date under respective act. ये लिखा हुआ है under respective act. लेकिन मेरे एक बड़े डियर स्टूडेंट जो उस वक्त हाई कोर्ट के जज थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बाद रिटायर हुए हैं और बड़े इनकम टैक्स के अच्छे माने जाते थे, उन्होंने कहा जी नहीं, आई डोंट एग्री. जब प्रोविडेंट फंड वाले लेट पेमेंट ले लेते हैं तो इसको हम अलाउ कर देंगे इफ द पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ 139(1) एज पर सेक्शन 43B. कि 43B में जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ड्यू डेट तक पे कर दो, इसको भी आप ड्यू डेट तक पे कर दो. 12 हाई कोर्ट की जजमेंट इसी फेवर में आई हुई है. लेकिन गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट आप ही महानुभाव हैं अगेंस्ट आई हुई है कि नहीं, एज पर द ड्यू डेट होना चाहिए. अब कई केसेस पेंडिंग है और लॉ ने क्लियर ही कर दिया है. एक्सप्लेनेशन डाल दी 36(1) VA में, एक्सप्लेनेशन डाल दी 43B में. क्या लिखता है? It is hereby clarified that provision of section 43B that will not be applicable for the due date under this section. मतलब वो तो 43B लगेगा ही नहीं, आपने तो जबरदस्ती बना लिया. तो मतलब क्या है? आपको ड्यू डेट से पहले पहले जमा कराना ही पड़ेगा. एक दिन भी डिले करेंगे तो आपको ये डिडक्शन मिलनी ही नहीं है, इनकम मान ली जाएगी. सर 43B में एक फायदा था, अगर आज नहीं मिला तो अगले साल जमा करा देंगे तो मिल जाएगा. इसमें तो मिलना ही नहीं है. एक दिन डिले, 15 तारीख उसका प्रोविडेंट फंड का, 21 तारीख ESI का, करा दिया तो करा दिया, नहीं तो जितना पैसा है सब आपकी इनकम मान ली जाएगी. बड़ा रगड़ा पड़े. मुझे कोई कहते सर क्या रिट्रोस्पेक्टिव है? वैसे एक्सप्लेनेशन तो रिट्रोस्पेक्टिव होती है, उस दिन से होती है जिस दिन से ये लॉ बनता है. लेकिन गवर्नमेंट ने कह रखा है कि हम रिट्रोस्पेक्टिव करेंगे नहीं, हम आगे से करेंगे, अश्योरेंस दी हुई है. तो लेकिन वो कहते हैं वो तो आगे से कर लेंगे. जो पिछले केस हो गए हैं ठीक है, लेकिन जो केस पेंडिंग पड़े हैं उसमें हम कुछ नहीं करेंगे. जो कोर्ट करे वो उसका काम है, हम नहीं करेंगे. कईयों की अपीलें पेंडिंग है, कईयों का बड़ा कुछ पेंडिंग है, वो तो कोर्ट करेगा. हमने तो लिख दिया कि ये अलाउड नहीं है इफ द पेमेंट इज नॉट मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139 ड्यू डेट अंडर रिस्पेक्टिव एक्ट. तो 36(1) BA एंड 43B में दोनों में एक्सप्लेनेशन करके ये हटा दिया गया. मैं आपको बताऊं. अब सुनिए, ये जो बिल्डर्स हैं बड़े परेशान हैं, कह रहे जी हर जगह स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बढ़ गई है. 43CA में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बढ़ती जाती है लेकिन एक्चुअल सेल प्राइस तो बढ़ी नहीं है. तो उसकी वजह से हमारा माल ही नहीं बिक रहा. अगर हम बेचते हैं तो हमें कैपिटल प्रॉफिट देना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. ये तो बड़ा गलत बात है. पहले हमारे पास 5% की कंसेशन थी, मालूम है ना, एक्चुअल कंसेशन प्लस 5%. फिर उसको पिछले साल 10% कर दिया गया था. लेकिन वो कहते हैं अभी भी नहीं बिक रहा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अभी भी ज्यादा है. तो उन्होंने एक टेम्पररी रिलीफ दिया है 43CA में प्रोवाइजो डाल के कि अगर 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 21 तक कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करें तो हम आपको रिलीफ 20% का देंगे इंस्टेड ऑफ 10%. लेकिन अप टू विच डेट? 30 जून. मैं एक एग्जांपल देता हूं. सपोज द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, 1 करोड़.
and you want to sell it for 80 lakh. सर 80 लाख में अगर 20% जोड़ भी देंगे ना तो 96 होता है, नहीं 1 करोड़ ही लगेगा। अगर 10 होता तो और महज है, लेकिन मैंने 85 की बेचता हूं तो 20% ऐड करें तो 17 आ जाता है, 102 हो जाता है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज नॉट मोर देन 102। तो इस केस में आपको 85 पे टैक्स देना है, प्रॉफिट और गेन। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें कंडीशन है, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होनी चाहिए बिल्डर द्वारा, 2 करोड़ से ऊपर एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, और रेजिडेंशियल यूनिट होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो 12 जून तक हम उस बिल्डर्स को एक कंसेशन दे दिया कि भाई साहब आप 20% तक का कंसेशन ले लो। तो ये आया है 43CA रेड विद सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब मुझे मत कहना बिशन जी भी मार खा रहे हैं और हम भी मार खाएंगे। बिशन जी ने टैक्स ऑडिट वो GST ऑडिट हटवा दिया। मैं बिशन जी का नाम इसलिए ले रहा हूं, ये ज्यादा एक्सपर्ट इनडायरेक्ट टैक्स के हैं। एम आई राइट सर? GST ऑडिट भी चला गया और अब टैक्स ऑडिट की लिमिट भी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी। कितनी यूनिट चले गए बाहर? अब तो काम ही कम हो गया। ऑडिट GST भी गया और ये भी गया। मेरे समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन वो रूल है 95% पेमेंट और रिसीट शुड बी इन ए मोड अदर देन कैश। मुझे लोग कहते हैं ये क्या करा दिया? सर मैंने नहीं कराया, मैं तो टैक्स ऑडिट करता ही नहीं हूं। मेरे को तो 40 साल हो गए टैक्स ऑडिट किए हुए, और तब टैक्स ऑडिट था ही नहीं। 40 साल पहले टैक्स ऑडिट था नहीं, 1988 में आया था, तो पहले ही नहीं। तो मेरे को तो टैक्स 84 में आया था, मुझे ध्यान नहीं आया था, तो मैं तो करता ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें अच्छे के लिए होती हैं, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आप कहेंगे क्यों, क्या अच्छा हुआ इसमें? अरे सर ये छोटे छोटे जो है ना, इनके पास कोई रिकॉर्ड ही ठीक तरह नहीं है, इनके पास तो स्टॉक रिवॉर्ड भी नहीं है। फॉर्म 3CD हमें भरना पड़ता है और 90 चीजें हम नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं। है तो एप्लीकेबल, लेकिन क्या करें, काम तो करना है और वो फिल होती ही नहीं, और हम फंसते हैं। हम फंस रहे हैं, बहुत फंसे हैं। तो अच्छा है ना, जान छुटी, भगवान जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। कुछ कहते हैं पैसे कम मिलेंगे, और मैंने कहा कुछ नहीं मिलेंगे, वो तो सारी फीस ही इकट्ठी थी। टैक्स ऑडिट की सेपरेट फीस थोड़ी देते थे, अगर इकट्ठी थी तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी थी। कई मुझे कहने लगे CA सर हम बताएंगे नहीं, हम तो टैक्स ऑडिट कर देंगे। कर देंगे क्या हुआ? मैंने करने से फायदा क्या होगा? क्या हुआ? मैं कहा याद रखना, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 31 जुलाई हो जाएगी, फिर अक्टूबर नहीं रहेगी, फिर अक्टूबर नहीं रहेगी। अक्टूबर तो ड्यू डेट मिशन जी तभी होनी है जब इट इज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो 31 जुलाई होगी, सबको पता लग जाएगा। अरे छोड़ो ना, अपनी जान छुड़ाओ। अब जो भगवान है, जो उसने पैदा किया है, हमें इतनी मेहनत करके CA बनाया है, तो वो ध्यान रखेगा ना हमारा। क्यों परेशान हो रहे हो? GST ऑडिट या नहीं था, जब तो नहीं है तो नहीं है, कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। वैसे भी अब जो प्रैक्टिस होने वाली है वो तो नॉलेज बेस्ड होनी है, स्किल बेस्ड होनी है। सब कुछ तो फेसलेस हो गया, अब पढ़े लिखों का जमाना आ गया। आप कहेंगे CA तो सारे ही पढ़े लिखे होते हैं, वो पढ़ते थे CA पास करने तक, बाद में पढ़ना छोड़ दिया। वो कहते पढ़ के भी क्या करें, मैं जानता हूं उसको, मैंने उससे केस करा लिया है और मैं आगे भी करा लूंगा। समझ गए ना मेरा पॉइंट? लेकिन अब तो नहीं होगा ना। अब ये नहीं कह सकते मैं हूं ना, मेरा कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट गॉन। इसलिए अब जिसको आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन आता है, जिसको आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग आता है, जिसको कम्युनिकेशन स्किल होगी और वो पॉइंट्स को गैदर करके प्रेजेंट करेगा, डेफिनेटली उसका काम आगे बढ़ने वाला है, बाकियों का नहीं बढ़ने वाला। तो इसलिए कह रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने नहीं कराया। हाथ जोड़कर मैंने नहीं कराया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। किसी जमाने में तो कहते हम टैक्स ऑडिट हटा ही रहे, तो मेरी रिपोर्ट पे पढ़ लो जो हमने लिखी थी। हमने वहां 1 करोड़ ही लिमिट रखी थी,
और 2 करोड़ 44 AD की। पिछले साल 5 कर दी, इस साल 10 कर दी। वो कहते हैं हमारे पास पूरी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हमने क्या करना। चलिए ये जो हो गया, अब मैं कुछ कहना नहीं, मुझे कुछ, ये जो हीरो बनते हैं ना डिपार्टमेंट वाले, इनकी भी कहानी सुनो। आपके पास एक 44 ADA है ना बिशन जी, आप भी करते, उनके लिए है जो छोटे होते हैं। हो सकता है बिशन जी की ग्रॉस एसेट 50 लाख से ज्यादा हो तो शायद 44 ADA में जाते ही ना हो, मुझे क्या पता, मैं ऐसे ही बोल दूं, कहेगा सर मैं तो 2 करोड़ भरता हूं और ये 44 ADA में मुझे भेज रहे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने बोला एक 44 ADA में लिखा था, इन केस ऑफ ए पर्सन हु इज कैरिंग ऑन ए प्रोफेशन referred to in section 44AA, he can presume his income to be 50% of the total receipt, provided the total receipt do not exceed 50 lakh. है ना सर, 50 लाख, कैरिंग ऑन ए स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अब इन्होंने देखा, हमने वर्ड लिख दिया पर्सन, पर्सन लिखा है, नाम नहीं दिया पर्सन का। कंपनी तो चलो कर नहीं सकती प्रोफेशन, लेकिन LLP का क्या होगा? LLP तो कर सकती है, और LLP के एज पर LLP लॉ अकाउंट्स मैंडेटरी हैं। तो आप तो कह रहे हैं यहां अकाउंट्स ही नहीं बनाने, तो ये तो मैंडेटरी है, ये तो गलती हो गई, ये तो गलत हो गया। LLP को हटाया नहीं, क्या करें, हटा देते हैं। कैसे हटाएं, अंग्रेजी कहां से सीखे? कहता 44 AD में लिखा है, उसको नीचे ले आते हैं। 44 AD में लिखा है, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल, HUF और ए फर्म अदर देन LLP। कट पेस्ट की, उठाया और डाल दिया। लेकिन हरे जी मुझे बताइए, क्या प्रोफेशन HUF कर सकता है? तो फिर ये HUF कैसे लिख दिया? अपनी गलती नहीं मानेंगे, HUF प्रोफेशन कैसे कर देगा? अरे मैं करता और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो क्या मैं उसके नाम पे बिजनेस कर सकता हूं, प्रोफेशन कर सकता? ये देखिए बेवकूफी, इसे कहते हैं कट एंड पेस्ट, इसे कहते हैं मक्खी पे मक्खी मारना। तो इसमें गलती करिए, ये हटा देंगे। मैंने कह दिया उनको, HUF को तो हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ये आदत है। तो ये 44 ADA में चेंज आया जो मैंने बताया। आगे चलते हैं, एक 44 DB है जिसमें आप मर्जर करते हैं कोऑपरेटिव बैंक विद अनदर कोऑपरेटिव बैंक विद अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी विद अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इन्होंने कह दिया कोऑपरेटिव बैंक किसी नॉर्मल बैंक के साथ भी मर्जर हो सकता है, इसलिए वो उन्होंने दे दिया। अरे वो AM2 है ना, PMT, वो PMT बैंक पंजाब में, वो जो बैंक बॉम्बे में है वो कोऑपरेटिव बैंक है। अब इसको कहीं ना कहीं तो मर्ज करना है। अरे मर्ज करेंगे तो फिर भैया कहेगा कैपिटल गेन दो, तो उन्होंने कह दिया चलो मर्ज कर दो, हम आपको वो बेनिफिट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन दे देंगे। ये आइडिया वहीं से है, मैं आपको बता दूं। आगे चलता हूं, ये 44 DD हो गया। अगला सेक्शन, बहुत लोग करते हैं गड़बड़। आपको पता है, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इफ देयर इज अ डिसोल्यूशन एंड यू गिव द एसेट इन काइंड टू द पार्टनर्स for the capital he has contributed, तो उसमें लिखा हुआ है, it you will have to calculate the capital gain in the hands of the firm by taking the fair market value of the asset on the date of distribution. ऐसे नहीं, आपने उसको दे दिया। इसमें दो इशू आ गए। एक कहते हैं पार्टनर को ट्रांसफर कहां किया, पार्टनर तो रिसीव करता है, चलो उसको हम कह दिए। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, आपका कैपिटल है, अब कैपिटल के बदले एसेट देना चाहते हैं। अब इन्होंने वर्ड पार्टनरशिप नहीं लिखा, स्पेसिफाइड एंटिटी, उसमें AOP भी था। स्पेसिफाइड एंटिटी मींस पार्टनरशिप फर्म एंड AOP। फिर दूसरा वर्ड लिखा स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन मींस पार्टनर ऑफ ए फर्म और मेंबर ऑफ AOP। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हमने लिखा था डिसोल्यूशन और अदरवाइज। People were saying or otherwise does not mean retirement. It is only dissolution. लेकिन एक AN नायक का जजमेंट है मुंबई हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा था, AN नायक ने कहा था, even reconstitution of the firm is also covered in this, या रिटायरमेंट भी कवर्ड है। लोग अदर जजमेंट्स कोर्ट की थी, रिटायरमेंट कवर्ड नहीं है। लीजिए, अब इन्होंने लॉ ही चेंज कर दिया। Section 44(5) subsection 4 has been substituted by
section 45 subsection 4 and 4A. सुनिए क्या क्या है। अगर आपका कैपिटल है और आप डिसोल्यूशन करने जा रहे हैं या रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और उसमें आप उसको कैपिटल जितना है उसको वापस देना चाहते हैं इन काइंड, मतलब उसके बदले एसेट देना चाहते हैं, वो अबाउट द कैपिटल आउटस्टैंडिंग। पहले उन्होंने कहा दिस कैपिटल शुड बी विदाउट रीवैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट। पहले हम क्या करते थे, साल 2 साल पहले रीवैल्यूएशन करके कैपिटल को बढ़ा देते थे और फिर वो पेमेंट कर देते। वो कहता है इसका रीवैल्यूएशन अलाउड नहीं होगा। और दूसरा, इसमें डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन दोनों कवर हो जाएंगे। एंड यू विल लायबल टू बी, who will be liable to capital gain? Specified entity, calculate consideration to be calculated on the basis of market value of that asset. ये 45(4) में लिख दिया। अब कई क्या करते थे, रिटायर करने वाले को पैसे दे देते थे, एसेट नहीं देते थे, जा अपने पैसे ले जा, एसेट। अब उसमें भी गड़बड़ करते थे, एसेट को रीवैल्यू करके उसका कैपिटल बढ़ा दिया और फिर उसका कैपिटल वापस कर दिया, और कैपिटल वापस कर दिया तो उसके ऊपर वो कैश टैक्स देता ही नहीं था। अब उसने क्या कहा है, रीवैल्यूएशन नहीं करेंगे, नॉट अलाउड। एंड इफ यू मेक एनी पेमेंट ऑफ मनी और बाय एसेट फॉर मोर देन द कैपिटल, आपने क्या किया, उस कैपिटल से जितना बैलेंस है उससे ज्यादा देना चाह रहे हैं तो 45(4)(A) लग जाएगा। और इसमें भी कैपिटल गेन टैक्स कौन देगा, फर्म देगी जो ज्यादा पैसा दिया, और पैसे के साथ एसेट भी दिया तो उसकी मार्केट वैल्यू निकालकर फर्म टैक्स दे। तो ये 45(4) और 45(4)(A) आया जो आपको तंग कर रहा है आजकल। ठीक है सर, आगे चले। 80EE क्या था, you get the loan sanction up to 31st March 21, you want to buy affordable house, residential house, price of that should not be more than 25 lakh, then the interest will be allowed to you, additional interest will be allowed to you to the extent of 1,50,000। लेकिन पिछले साल तो पेंडेमिक रहा, कोरोना रहा ज्यादा, तो खरीद नहीं सके इस साल, तो उन्होंने कह दिया कि 1 साल और बढ़ा देते हैं। लोन शुड बी सैंक्शन अप टू 31st March 22। इस साल तो निकल ही गया था तो वो ले नहीं सका, तो अगले साल तक बढ़ा दिया 80EE, और आपको 1.5 लाख का डिडक्शन अगले साल मिल जाएगा अगर लोन गॉट सैंक्शन बाय 31st March 2022। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए 80IBA अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का प्रॉफिट 100% माफ होता है, आपको मालूम है 80IBA। लेकिन इसमें भी लिखा था प्रोजेक्ट शुड बी सैंक्शन बाय 31st March 21। कोविड की वजह से कुछ हुआ ही नहीं है तो इसको भी 1 साल और बढ़ाकर 31st March 22 कर दिया गया है। अब आया, ये तो आपने कर दिया 31st March 22, लेकिन अब क्या है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो मोदी जी ने एक माइग्रेट लेबर के बारे में बताया। माइग्रेट लेबर आती है, शहर में घर मिलता नहीं है रहने का, या झुग्गियों में रहती है, या उनके पास व्हाट यू कॉल इतना किराया देने के पैसे नहीं है, तो आप एक बनाइए रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो निकालिए, बनाइए, अफोर्डेबल हो, तो हम उसका जो प्रॉफिट आएगा वो पूरा का पूरा माफ कर देंगे उस बिल्डर को जिसने रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया और मेंटेन किया। और वो क्या है, सेक्शन 80IBA में सब सेक्शन 1 कैपिटल A डालकर ये लिख दिया है। तो मैंने ये भी आपको बता दिया, ये होगा। आगे चलते हैं। हरी जी, आपको रिटर्न भरनी होती है तो ड्यू डेट है ही है, जुलाई या अक्टूबर, लेकिन कई बार बिलेटेड भरते हैं, तो कितनी डेट थी, 31st March, बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। आपने रिटर्न ऑलरेडी भरी है तो आप रिवाइज करना चाहते हैं, या बिलेटेड है तो भी रिवाइज करना चाहते हैं, उसके लिए भी बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर था, 31 मार्च के बाद भर ही नहीं सकते। लीजिए अब इन्होंने क्या कहा है, आप रिटर्न को लास्ट डेट 3 months प्रीपोन कर दी है, मतलब 31 दिसंबर के बाद
आप रिटर्न भर ही नहीं सकते अंडर सेक्शन 139(4) और 5, भर ही नहीं सकते। क्या डेट? 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। पहले 31 मार्च होता था, लास्ट डे होता था, अब 31 दिसंबर। Belated return, revised return can now be filed at least 3 months before the due, 3 months before the end of the assessment year. ये क्लियर हो गया? तो 31 दिसंबर के बाद अब आपके पास काम नहीं होगा, होगा नहीं, दिसंबर तक खत्म, उसके बाद रिटर्न जानी नहीं। सुनिए, जो टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट है उसको भी बदल दिया। पहले आपको पता 2 साल में टाइम बार्ड होता था, फिर 21 मंथ टाइम बार्ड हुआ, फिर 18 मंथ टाइम बार्ड हुआ, और अब 12 महीने में टाइम बार्ड होता है मार्च में। इसको भी प्रीपोन करके 9 मंथ्स कर दिया इंस्टेड ऑफ 1 ईयर। तो अब टाइम बार्ड भी केस 31 दिसंबर के बाद, उसके बाद कोई असेसमेंट ही नहीं होगी उस टाइम बार्ड की। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। उनको तो हरी जी अभी भी 1 साल मिल गया, हमें नहीं मिला, उनको तो मिल गया। आप कहेंगे कैसे? पहले मार्च 31 तक भरते थे, अगले 31 मार्च तक कंप्लीट होता था। अब दिसंबर 31 तक भरेंगे तो अगले दिसंबर तक होगा। वो तो चुप करके प्यार से मोहब्बत से 1 करोड़ 1 ले गए, हमारे लिए 3 महीने कम कर। लेकिन एक और सुनिए, 143(2) आता है, कब आता है? That notice under 143 can be served within 6 months from the end of the financial year in which return is made. Am I right? Within 6 months from the end of the financial year return is made. मतलब 30 सितंबर तक अगर स्क्रूटनी नोटिस नहीं आया तो उस साल की स्क्रूटनी नहीं होगी। यही था ना? इसको भी 3 मंथ्स प्रीपोन करके क्या कर दिया? 30 जून कर दिया। इट हैज बीन प्रीपोन। क्लियर हुआ? लेकिन उनको फिर भी 12 महीने मिल गए। हम दिसंबर में रिटर्न भरेंगे, वो अगले दिसंबर में कंप्लीट करेंगे। हम पहले मार्च में भरते थे, वो मार्च में कंप्लीट करते थे, तो उनको तो 12 मिल गए, लेकिन हमारा 3 महीने कम हो गया। क्लियर है? क्लियर है? ये रिटर्न की बातें करी मैंने, आगे बातें करते हैं। जो नोटिस है स्क्रूटनी का, अभी तक सितंबर में था, अब जून में आ जाएगा, ये मैंने बोला। एक 143(1)(a) में एडजस्टमेंट होती है ना, जब आप इंटीमेशन ले लेते हैं, जब आप रिटर्न भरते हैं तो सीपीसी एडजस्टमेंट करता है। कोई इनकरेक्ट क्लेम हो, कोई अर्थमेटिकल एरर हो, कोई ऐसा क्लेम कर दिया, रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरी और लॉस क्लेम कर रहे हैं, रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरी और डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, वो अलाउड नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर देते हैं। एक और भी है, अगर ऑडिट रिपोर्ट में कोई लिखा ये एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड है या इट शुड बी नॉट गिवन इफेक्ट टू, तो वो हम ऐड कर देते हैं। लेकिन वहां नहीं लिखा कि अगर कोई ऑब्जेक्शन में लिखा है इनकम शुड बी इंक्रीज्ड, तो उस केस में आप कर सकते हो, वो भी आ गया। इवन इफ द इनकम इज इंक्रीज बाय वे ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन, दैट विल आल्सो बी टेकन इन द रिटर्न। आपको लेना पड़ेगा, उसको भी इनकम का इफेक्ट देना पड़ेगा। लीजिए, ये हो गया जो 143(1)(a) का था। आइए, हरे जी, आज तक जो आपने देखा वो जो होते हैं सर्च केस, वो 153(a), 153(b) और 153(c) में होते थे, और उसमें 6 साल के केस खुलते थे, 6 साल के रिटर्न, और 4 साल भी जा सकते थे if in any one or all combined taken together the income escaped assessment is more than 50 lakh or more। ठीक है ना? तो 10 भी हो जाते थे, 6 तो पक्के थे, और 4 तब, और 4 में से 1 4 तब जब 4 सालों के इनकम एस्केप 50 से ज्यादा। अब सुनिए, आफ्टर 31 मार्च 21 अगर सर्च होती है तो 153(a) नहीं लगेगा, उसके लिए वो रीअसेसमेंट के प्रोविजन लगेंगे जो 147 है, रीअसेसमेंट के लगेंगे। सर वहां तो प्रोविजन डिफरेंट है, कहता कोई बात नहीं, हम सारे सेक्शन बदल रहे हैं। 147 चेंज, 148 चेंज, 149 चेंज, 151 चेंज,
सारे बदल दिए। अब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। पहले होता था इफ द AO हैज रीजंस टू बिलीव, अब ऐसा नहीं है। इफ द AO is of the opinion there is some income which has escaped assessment, he, subject to the provisions of 148 to 53, can reassess such income or recompute some loss or allow depreciation. ये लिखा है ना कि AO कर सकता है। लेकिन अब क्या किया है? पहला पॉइंट तो ये किया है, सर्च के केसेस भी और नॉर्मल केसेस रीअसेसमेंट में आ गए हैं। जो रीअसेसमेंट हो, दोनों बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन रुकिए, उन्होंने क्या लिखा है कि देखिए सर्च का केस है तो 3 ईयर तक खुल सकता है, पास 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम विच इनकम इज एस्केप्ड असेसमेंट। और नॉर्मल में भी 3 ईयर कर दिया, 6 ईयर का 3 ईयर कर दिया। नॉर्मल में पहले 2 डेटे थी, 4 साल भी था और 6 साल भी था। अब 4 और 6 हटाकर 3 ईयर कर दिया गया और सर्च भी 3 ईयर का होगा। लेकिन रुकिए, पहले क्या होता था, नॉर्मल रीअसेसमेंट होती थी, आपको 148 का नोटिस आता था, फिर आप रिटर्न भरते थे और रिटर्न भरने के बाद आप ऑब्जेक्शन फाइल करते थे और ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद जो एक्सेप्ट हो गया वो मिला, बाकी आपको टैक्स देना पड़ता था। यही रूल है ना। लेकिन अब क्या कहा है, तो देखिए एक बात सुन लीजिए। अगर तो आपकी कोई इनकम एस्केप हुई है नॉर्मल केस में, सर्च को छोड़ दीजिए, नॉर्मल केस में, तो AO पहले विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द हायर अथॉरिटी एक नोटिस इशू करेगा कि सच एंड सच यू हैव एंटर्ड इनटू सच एंड सच ट्रांजैक्शन व्हिच मस्ट हैव रिजल्टेड इनटू सच एंड सच इनकम। वो नोटिस इशू करेगा, आपको शो कॉज देगा, आप उसका रिप्लाई करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि ये लायबिलिटी है कि नहीं, वो जो इनकम रीअसेस होनी है कि नहीं। अगर है तो वो आपको भेज देगा और 15 दिन में आप उसको कंप्लीट भी कर देंगे। ये था कि अगर इनकम एस्केप वो जो है लेकिन ये है, अब पहले क्या होता था, आप रिटर्न भरते थे, डिपार्टमेंट नहीं बताता था कि उनके पास कौन कौन सी इनकम है, वो वेट करता था, आपका टेस्ट लेता था, आप रिटर्न भरेंगे तो वो इनकम दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। फिर भी नहीं दिखाई होती तो स्क्रूटनी ले लेता था 143(2) और आपको नोटिस कहता था बताओ। फिर भी नहीं होता था तो फिर 147 लग जाता था कि किसी साल की इनकम एस्केप हो गई, तो आप उसको 147 डाल के उसको नोटिस देते थे कि रिटर्न फाइल कर। रिटर्न फाइल करने के बाद वो बताता था रीजन बताइए, और रीजन बताने के बाद फिर आप उसको ऑब्जेक्शन फाइल करता था और फिर आप केस करते थे। कहते रुको ना, हम लिटिगेशन दूर कर रहे हैं, क्या कोई रीजन नहीं बताना, आपको वो आपने गेन बता दिया है, आपको क्या करना है कि आप इस केस में जो मैंने बताया रीअसेसमेंट कराना है, तो पहले बताइए ये क्या है। आपको बता दिया कि भैया तुमने ये ट्रांजैक्शन करी है, ये ट्रांजैक्शन करी है, ये ट्रांजैक्शन करी है, आपने ये इनकम नहीं दिखाई, ये फंड कहां से आए। तो वो जो केस है ना, अब इंक्वायरी होने के बाद, आपको अपॉर्चुनिटी देने के बाद डिसाइड करेंगे कि इसको 148 करना है कि नहीं करना। अगर डिसाइड कर दिया तो आपको 148 से नोटिस इशू करेंगे, प्लस ये कॉपी ऑफ द ऑर्डर लगाएंगे और कहेंगे रिटर्न फाइल करिए, क्योंकि हम 147 आपका करेंगे। सो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पहले दे दी गई, रीजन बता दिया गया कि तुम्हारा इस कारण से हम केस को ले रहे, पहले ये नहीं बताते थे, ठीक है। लेकिन सर्च के केस में, लिक्विडेशन के केस में, 133A सर्वे के केस में हम आपको कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, वो तो वैसे ही इन्वेस्टिगेशन हुआ है सर्च, उस केस में हम 148A नहीं करेंगे, बाकी सब में 48A करेंगे। समझ आया? 148 क्या है? इंक्वायरी बिफोर इशूइंग ए नोटिस अंडर 148, एंड दैट इंक्वायरी इज a sort of investigation and you are heard in that and you have to do it. ठीक है जी, ये भी हो गया। अब 148 का नोटिस आएगा, कॉपी ऑर्डर लगेगी, लेकिन 148 के नीचे 2 एक्सप्लेनेशन डालिए। कहते हैं जी एक रिस्क कंप्यूटर के बेस पर रिस्क
असेसमेंट स्ट्रेटेजी बनी है। उस स्ट्रेटेजी की वजह से कोई केस आ गया तो वो मानेंगे कि उसके ऊपर यही होगा 147। तो वो मान लिया कि रिस्क स्ट्रेटेजी ने अगर लिख दिया तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, सर इसका रीजन बताइए, कोई रीजन नहीं, वो माना जाएगा। फिर दूसरा, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ने अगर लिख दिया कि ये केस में ये इशू है तो वो भी मानना पड़ेगा। ये तो उन्होंने लिख दिया। नीचे एक्सप्लेनेशन 2 डाली कि अगर सर्च का केस है, रिक्विजिशन का केस है, 133A है, या मनी बुलियन ज्वेलरी फाउंड इन योर पोजेशन है, उन सब केसेस में, उन सब केसेस का जो मैंने कहा, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है किसी भी बात की वही इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं वो तो खुद ही इंफॉर्मेशन है, हम उसके लिए हमेशा 147 करेंगे, इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, 147 करेंगे। लेकिन पहले नॉर्मल केस में 6 साल से ऊपर नहीं जाते थे, अब नॉर्मल केस में 3 साल से ऊपर नहीं जाना। लेकिन रुकिए, अगर पिछले उससे सालों में 6 सालों में से एक साल में अगर किसी भी साल में 50 लाख से ऊपर इनकम एस्केप हुई है तो उसका केस भी हम ले सकते हैं। सो 3 से लेकर 10 तक, 3 तो कंपल्सरी, 3 में से एनी 3 ले सकते हैं। लेकिन साथ में अगर किसी में 50 लाख से ऊपर है तो आपका 10 साल हो जाएगा, उतने साल का हो जाएगा, मैक्सिमम 10 साल। मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, मिनिमम 3, मैक्सिमम मिनिमम 3 भी नहीं है। नॉर्मल में तो 1 भी हो सकता है, सिर्फ 1 साल की इनकम एस्केप हुई हो। लेकिन जब सर्च होता है ना तो आपको रिटर्न 3 साल की भरनी पड़ेगी। पहले 6 साल की भरते थे, अब 3 साल की भरेंगे और उस 3 साल का असेसमेंट होगा। वो ये लॉ ने बना दिया। लेकिन सर्च के केस में भी 3 साल हो गए नॉर्मल केस में। लेकिन अगर 2 करोड़ से ऊपर है और वो प्रॉपर्टी है तो उस केस में सर्च कोई इनकम है और 50 लाख से ऊपर है तो हम उस केस में आपका 10 साल तक जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते। तो ये 147 चेंज हो गया, 148 चेंज हो गया, 148A चेंज हो गया, 149 चेंज हो गया। पावर का है कि कौन पावर, उसमें लिख दिया 151 में कि PCIT पावर है। अगर केस जो है PCIT के पास पावर है इस केस में, अगर वो 3 साल का केस है, 3 साल तक PCIT को पावर है। 3 साल के बियॉन्ड जाना है, मैक्सिमम 10 तक जा सकते हैं, तो आपको पावर कितनी है, PCCIT, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अप्रूवल लेके तब आप जा सकते। क्लियर हुआ? ये मैंने सारे परसेप्शन बता दिए। आइए, बड़ा प्यार से पार्लियामेंट में बोला जा रहा था, देखिए हमने कितना फायदा कर दिया 75 साल की उम्र वालों का कि हम वो उनको कोई रिटर्न भरनी नहीं पड़ेगी। सर ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। सेक्शन 194P डाला है उन्होंने, 194P, और 194P में क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए 1 मिनट। 194P में उन्होंने कहा, लुक हियर, अगर आप 75 ईयर ओल्ड हैं, सेकंड कंडीशन, आपकी सिर्फ 2 इनकम है, पेंशन एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, चाहे वो सेविंग हो या पर, एंड वो एक ही बैंक अकाउंट में है, एक ही बैंक में है। और उस केस में अगर बैंक सारा पैसा काट लेता है, TDS जितना भी टैक्स ड्यू होता है, तो आपको रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। पहले तो 75 साल होना चाहिए, दूसरा बैंक एक ही होना चाहिए, अगर मेरे 2 बैंक है तो अलाउड नहीं है, तीसरा ओनली 2 टाइप्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, नंबर 1 पेंशन एंड इंटरेस्ट, और कोई इनकम नहीं है। अगर उसकी डिविडेंड इनकम आ गई तो क्या करेगा, कुछ शेयर ले रखे, उसकी म्यूचुअल फंड आ गई तो क्या करेगा, उसकी हाउस प्रॉपर्टी आ गई तो क्या करेगा। मतलब आप 75 साल वाले को समझते हैं उसके पास तो कुछ है ही नहीं, बस सिर्फ पेंशन होगी या इंटरेस्ट होगा और कुछ होगा ही नहीं। अरे वो सुगम फॉर्म में कितनी देर लगती है, 5 मिनट तो लगते हैं ऐसे आदमी का, तो क्या है, क्या आपने कंसेशन दे दिया, कैसे बातें कर रहे हैं। इससे अच्छा तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंसेशन दिया है कि 75 साल वाली उम्र का जो है उनकी मेडिकल फ्री कर दी। इससे ज्यादा तो उन्होंने कर दिया, मेडिकल फ्री कर दिया। आपने फ्री थोड़ी करा है, आपने तो रिटर्न नहीं डालनी, बस यही कहा। अरे सर, इंस्टीट्यूट ने भी जो कह तो दिया है, लेकिन कोई जाएगा,
अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्या जाऊंगा लेने? नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए। और सीए के पास पैसे नहीं होंगे, हो सकता है कि पैसे तो थे, रिटायर हो गया, बच्चों को पैसा दे दिया सबको, अब रो रहा है, बच्चे का इलाज नहीं कराते तो इंस्टीट्यूट हेल्प कर देगा, अदरवाइज तो इंस्टीट्यूट पे जाना अच्छा प्रपोजल है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये रिटर्न वाला क्या प्रपोजल है यार? ओनली टू इनकम और बैंक भी एक, तो रिटर्न नहीं भरनी, नहीं तो भरनी है। तो ये आया जी लॉ, ये 94P है। और लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन आपने कराए, 206C1H में प्रोग्राम कराए, समझ में नहीं आ रहा था लोगों के, अरे वो बेवकूफ बना के हमें मार गए। लोगों ने सारे सॉफ्टवेयर चेंज कर दिए और लोगों ने बिल में ही टीसीएस ऐड कर दिया, अब उल्टा कर दिया सारा। अब क्या कहा है, अगर आप बायर हैं ऑफ गुड्स, वहां लिखा था यू आर सेलर ऑफ गुड्स हैं, यहां लिखा है बायर ऑफ गुड्स हैं, और आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस ईयर का, और आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर गुड्स की, या क्रेडिट कर गुड्स परचेज कर रहे हैं मोर देन 50 लाख, तो अब टीडीएस काटेंगे सेलर का 0.1%। समझ लें, पेमेंट करते हुए 0.1% टीडीएस काटेंगे। पेमेंट करते किसको करते हुए? सेलर को। टीडीएस काट लिया तो टीसीएस क्या होगा? टीसीएस में क्या लिखा था? सेलर ने टीसीएस कलेक्ट करना है। भाई साहब दोनों चलेंगे, लेकिन उसने लिखा है अगर 194Q एप्लीकेबल है तो फिर 2016C1H में नहीं जाना। 190 कौन सा एप्लीकेबल है? 194Q। बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ है और उसने गुड्स बाई किए हैं 50 लाख से ऊपर, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर 0.1% काट लीजिए। उधर क्या है? सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तब काटना है, 50 लाख से ऊपर पेमेंट अगर रिसीव करता है। लेकिन समझ में नहीं आया, सेलर का 10 से ऊपर है और बायर का 10 से कम है तो 206C1H में जाना है। अगर बायर का 10 करोड़ से ऊपर है, सेलर का कुछ भी हो, तो 194Q में जाना है। तो सारा तो गड़बड़ कर दिया। चित में जीता पट तुम हारे। टीडीएस टीसीएस तो होगा ही होगा गुड्स के ऊपर, कंट्रोल कर लिया गुड्स के ऊपर, टीडीएस या टीसीएस लगेगा। अगर तो बायर ने गुड्स दिया है तो आप क्या करेंगे? अगर बायर का टर्नओवर ज्यादा है तो आप पेमेंट करते हुए या क्रेडिट करते हुए 0.1% काट लीजिए, लेकिन उधर सेलर कलेक्ट कर रहा है बायर से। ठीक है सर, ठीक है सर, ये आ गया, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी 194Q को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिविडेंड जब बाहर जाता है तो उसमें लिखा है रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्सेज 20%, लेकिन बाहर की कंपनियां एफआई कह रही हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सर ट्रीटी में तो 10% लिखा है और आप 20% ले रहे हैं, हमें वापस लेना पड़ेगा। तो इन्होंने 196D प्रोवाइजर में डाल दिया, they provided that the tax to be deducted at source in case of dividend for FII shall be either the rate prescribed, that is 20%, or the treaty rate, whichever is less, whichever is beneficial. तो ये भी आपका फायदा उन्होंने कर दिया है। आप हरीश जी, आपको मालूम है कि अगर कोई पैन नंबर ना दे तो टीडीएस का क्या रेट है? रेट प्रिस्क्राइब्ड, रेट इन फोर्स और 20% विच एवर इज हायर, है ना? लेकिन दो केस में ये 5% है, जब 0.1 हो रहा है ना वहां 5% है अगर पैन नहीं देंगे। ठीक है, 5, और 194Q में भी 5% है। लेकिन हमारे यहाँ कई महारथी हैं, उनका टीडीएस कटा है लेकिन रिटर्न फिर भी नहीं भरते। 26 से शो कर रहा है, रिटर्न नहीं भरते। तो कहते यो 5% कट गया होगा, 10% कट गया होगा, कट ले यार, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं बाकी तो बच गया, वो रिटर्न ही नहीं भरते। अब इन्होंने एक नया सेक्शन डाल दिया 206AB, if a person
in whose case TDS has been deducted or TCS has been collected of an amount of 50,000 or more in both the two previous year, and he is not filing a return, then in that case, the deductor will have to deduct the tax at twice the rate. Twice the rate क्या होगा? जो rate prescribed है 10 है तो 20 है, 5 है तो 10 है, और तीसरा 5%, whichever is higher. लेकिन रुकिए, अगर पैन नहीं देगा तो फिर तो हायर ऑफ द टू है, 206AA और 26AB. अगर पैन देगा तो हाई डबल द रेट, 5 का 10, 10 का 20, 2 का 4, लेकिन 2 का 4 नहीं है, 5 होगा, whichever is higher. ये कर दिया. अब फंस गया. तो मुझे किसी ने पूछा सर लेक्चर में, हमें क्या पता उसने रिटर्न भरी या नहीं भरी? अरे जी, बैंक भी तो कर रहे हैं, 1 करोड़ के ऊपर टीओ करना है या 20 लाख हो तो करना है, अगर रिटर्न नहीं भरी तो एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको डिपार्टमेंट द्वारा, और वो कहेंगे इसका पैन नंबर डाल लो, और पैन नंबर बता देगा इसने पिछले 2 साल की रिटर्न भरी या नहीं भरी, और फिर टीडीएस काटो. तो उसका पैन नंबर डाल के आप टीडीएस काट लेना और डबल कर देना, और यही 206 सीसीए में डाल दिया किसका? टीसीएस का. ये उसके में भी डाल दिया टीसीएस का. तो ये देखिए 2 और मुसीबत बढ़ गई. अगला पॉइंट, आपको पता है डिविडेंड कभी भी आ सकता है. जरूरी थोड़ी है कि भाई फाइनल डिविडेंड है. इंटरिम डिविडेंड तो फरवरी में भी आ सकता है, मार्च में भी आ सकता है, नवंबर में भी आ सकता है. और मैं कैसे एस्टिमेट करूंगा एडवांस टैक्स पे करना है 4 इंस्टॉलमेंट में, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिन, 15 मार्च, जैसे कैपिटल गेन में भी यही प्रॉब्लम आती है. मैं कैसे एस्टिमेट करूंगा? उन्होंने कहते कोई बात नहीं, जो इंस्टॉलमेंट है निकल गई उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद की जितनी इंस्टॉलमेंट है उसमें वो पेमेंट कर दीजिए. अगर मार्च सारी 4 इंस्टॉलमेंट निकल गई तो 31 मार्च तक कर दीजिए. तो ये प्रोवाइजो में फिर इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा. तो ये वही वाली चीज इसमें भी ले आए डिविडेंड के ऊपर. अगला पॉइंट, सेटलमेंट जो कराया करते थे, सेटलमेंट कमीशन खत्म. अब खत्म सेटलमेंट कमीशन, और आईटीएटी भी फेसलेस होने जा रहा है. 255 सेक्शन डाल दिया कि अब आईटीएटी भी फेसलेस होगा. मर गए सारे. अब कोई कलेक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं. समझ में आ गया मेरा? लेकिन एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई है, स्टार्ट करा है नेगोशिएशन. उसमें हमने ये कहा था कि इतना लिटिगेशन होता है, अरे आमने सामने बैठ के देख लें. वो एओ मांगता नहीं है, कमिश्नर्स बैठे इधर, ईएसएससी बैठा है, कहेगा वो एक्सप्लेन करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा, तो सेटलमेंट हो जाएगा. लेकिन ये सेटलमेंट पर्सनली टेबल पे नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होगी इसकी, और रिकॉर्डिंग होगी. तो ये मत कह देना भाई साहब बाद में बात कर लेंगे. वहां ही बात होनी है जो भी होनी है. और ये अभी तक तो जो किया है, रिटर्न अप टू 50 लाख एंड वेरिएशन अप टू 10 लाख का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दी. सेक्शन 245 MA वो बनेगा. ये भी कर दिया है. बस एक और देखिए, 271AA आया था. अगर कोई फेक इनवॉइस, फेक बिल, फेक एंट्री होगी तो 100% पेनल्टी लगेगी अगर उस बुक्स में पाई गई. और जो ये एंट्री दिलवाएगा, समझ गए ना मेरा इशारा, उसको भी 100% पेनल्टी लगेगी. ये प्रोसिक्यूशन तो अलग है. अब एक और चीज डाल दी है 281B में, अगर ये फेक अमाउंट 2 करोड़ से ऊपर होगा तो एसेट भी अटैच कर ली जाएगी 281B में. सरकार बड़ी सख्त हो रही है, वो भी कर लेगी. और मैंने आपको मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द केस सेक्शंस सारे करा दिए हैं. अब आपकी जो क्वेरी है वो ले लीजिए, और फिर मुझे 6 बजे दूसरे लेक्चर में भी शिफ्ट करना है. 5:45 छोड़ देना, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा हूं, वहां जाके घर जाके करूंगा, नहीं तो ऑफिस वालों को यहाँ 8 बजे तक बैठना पड़ेगा. बोलिए, पूछिए सर.
Sir, during this budget, we found that for the fake invoice, if there are fake invoices which has been recovered, then in that case there will be a penalty and tax. Both are levied. And the डबल एडी में है ही है, hey, पेनल्टी तो 271 डबल डी है, टैक्स तो वहां लगेगा, जो वो उसमें तो वो अलग है, पेनल्टी तो लगेगी। and sir वो GST में भी जो आपने परचेज ले रखी है, वो परचेज हट जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा टैक्स लग जाएगा। Sir, we have not received any questions on the chat box. So if any participant has any question, please mention in the chat box so that we can take it up now. So sir, ये continuing to the questions which I have asked, that when it is said that it is a fake invoice, तो उसका repercussion GST में भी होगा, क्योंकि अभी GST की भी जो figures हैं, GST and wise, that is also repopulated. मतलब ये GST से शुरू हुआ है, 60,000 करोड़ का इनपुट क्रेडिट पे लिया गया, 60,000 का, 60,000 करोड़, ये किसने दिलवाया है मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारी फ्रेटर्निटी को बदनाम किया जा रहा है। बोगस बिल, अरे कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती और इनपुट क्रेडिट दिलवा दिया। शर्म आनी चाहिए जिसने ये काम किया। ये कोई इस काम के लिए सीए थोड़ी करी हमने कि बोगस बिल, वो तो अनपढ़ आदमी भी कर लेगा, लेकिन जीएसटी का भी इफेक्ट होगा, यहां पर भी इफेक्ट होगा, अंदर जाने का भी इफेक्ट होगा और प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। अब बताइए, सरकार सख्त हो गई है और इस चीज के लिए तो होनी चाहिए। Farid bhai, yes, there are some questions, so if you can ask. Question sir, जो भी participants के आए हैं, just a minute sir, एक ही है। बोलिए। Sir, धर्मेश जी ने पूछा है, sir, please explain as to whether a person who is a resident of Dubai shall be RBNOR as per section 6 in connection with yes, provided his total income, excluding the income from foreign source, is more than 15 lakh. So next question is from Rubal Bhandari. TCS is only on receipt basis, but TCS on sale. Yeah. TDS is receipt or credit, whichever is earlier. But TCS will be applicable only when the buyer sale is less than 10 crore. Buyer turnover is less than 10 crore. Otherwise, it will be TDS now from future. TDS gaya. Sir, for the tax audit, so the question here is that for tax audit limit has increased from 5 to 10 crores. The question is SSE having cash transactions below 5%, but net profit is below 6% or 8%. Then whether 6-8 कहां से ले आया यार? 2 करोड़ से नीचे होता है वो तो 6-8। हाँ तो अरे वो 44 AD में 2 करोड़ 10 करोड़ कहां से आ गया यार? ऐसे मत पूछो यार। 6-8% तो 2 करोड़ वाला है। अरे 2 मिनट रुको यार, मेरे इलेक्शन चल रहे हैं। please clarify. ऐसे सवाल मत पूछो जो गलत हो सर। Sir, sir, इन्होंने लिखा please clarify once again regarding higher rate of TDS or TCS in case of non-filing of return. मैंने बोला अगर आपने पिछले 2 साल की रिटर्न नहीं भरी है और TDS ईच ईयर में मिनिमम 50,000 या TCS हो गया और आपने रिटर्न नहीं भरी है, तो जो डिडक्टर है एट द टाइम ऑफ जो भी डिडक्ट करना है TDS, वो डबल रेट से करेगा। अगर 5% तो 10 करेगा, 10 से तो 20 करेगा और मिनिमम 5 होगा उसमें, उससे कम नहीं होगा। जैसे 1% है तो 5 करेगा, लेकिन पैन भी नहीं देगा, फिर तो जो हायर है तो 20 भी हो सकता है। तो ये उसको कहा है। और आप कहेंगे आपको कैसे पता लगा? मैंने आपको बता दिया, यूटिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उस यूटिलिटी में जाइए, पैन नंबर उसका डालिए, पता लग जाएगा कि उसने 2 साल की रिटर्न भरी है कि नहीं भरी। बात खत्म। हमने तो आपको तरीका बता दिया, तो घबराइए नहीं। सर बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने वो क्वेश्चन 206C 1H और 194Q को अगेन एक्सप्लेनेशन के लिए बोला है, पर वो हम सर आपका प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे तो उसमें ठीक है। वैसे भी सब कुछ YouTube में मिल जाना है।
बैंक्स का भी वही है सर। और सर इसमें लिखा है कि if belated return can't be filed after 31st December, then what about the late fees of 10,000? खत्म, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी यार। 5,000 रहेगी, 10,000 खत्म हो जाएगी। नहीं ऐसे कर देते हैं, 5 की 10 करवा देते हैं 31 दिसंबर से पहले वाली। वो खत्म हो जाएगी, फ्लक्चुअस हो गई, इनफ्लक्चुअस हो गई। सर बाकी तो मोरल सब कवर्ड ही है। सर I'll be very happy। Yes, sir. विशन भाई मेरा वो Yes, sir. प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। Yes, sir. So, as said, that a single conversation with a wise man is better than years of study. And all the participants, I can see that there were 1,000 participants were able to experience this quote. And sir, thank you very much for sparing your time, your knowledge with all of us. And it is said that raise your words, not voice. It is rain that grows flowers and not thunders. That is what our Central Council member said. So we will keep sharing knowledge, keep learning more things, and we will definitely keep hearing Girish Ahuja sir. Sir, ऐसा लग रहा है कि वेद व्यास जी खुद व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं. Thank you very much, participants, for joining. Take care, stay healthy, take Thank care. Thank you. We are now ending this meeting here. Thank you.